تو آپ کو بتائیں بجلی کے بلوں میں اضافے پر ٹاؤنشپ مکین بھی سراپائے احتجاج ہیں۔ لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، حکام بالا اور لیسکو کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سود پر پیسے لے کر بجلی کے بل ادا کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ حکومت پیٹرول اور بجلی بم کے بجائے اصل بم گرا کر مار دے۔ آپ کو بتائیں بجلی کے بلوں میں اضافے پر ٹاؤنشپ مکین بھی سراپائے احتجاج ہیں۔ لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، حکام بالا اور لیسکو کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سود پر پیسے لے کر بجلی کے بل ادا کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، آگاہ کیجیے۔ یہ بجلی کے بلوں میں تہلکہ خیز اضافوں سے ٹاؤن شپ کے مکین اور تاجر برادری سراپا احتجاج بن گئی ہے اور بجلی کے بلز میں اضافہ نامنظور کے نعرے لگاتے ہوئے جو لوگ ہیں وہ کثیر تعداد میں لیسکو کے خلاف نکلے۔ مظاہرین کی جانب سے اپنے نعروں میں یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ ہمسایہ ملک چاند پر پہنچ گیا ہے لیکن ہم بجلی ابھی تک روک ہیں، سود پر پیسے بجلی کے بل ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ کہنا ہے اس کو سنائیں کوئی سننے والا نہیں۔ پٹرول اور بجلی بم گرانے کے بجائے اصل بم گرا کر انہیں مار دیا شہر کی جانب سے گیا ہے۔ کے دوران نعرے بازی کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کچھ اسلام میں حرام نہ ہوتی تو آپ بل دیکھ کر اکثر لوگ خودکشی کر لیتے۔ غریب کے تاجروں نے اپنے دکان بند کر دی۔ مظاہرین سراپے احتجاج ہیں۔ زین العابدین، بہت شکریہ آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بجلی کا بل آیا، موبائل بکا زیور گوایا، کسی نے ادھار اٹھایا، ٹیکسز سے بھرے بجلی کے بلوں نے عوام کے اوسان فیوز کر دیے۔ بجلی کے بلوں میں تاریخ ساز اضافوں کے خلاف شہر میں جگہ جگہ مظاہرے، حکام بالا، سیاستدان، آفیسر سب بجلی کے بلوں پر خاموش ہیں۔ بچے، بڑے، جوان، خواتین و حضرات سب لیسکو کو کوستے نظر آئے۔ بل بلاتے عوام کی چیخ و پکار نہ کارخانے میں طوطی کی آواز بن کر رہ گئی۔ بجلی کے بلوں نے بچوں سے معصومیت اور بچپن کی بے فکری چھین لی۔ ڈرائیو اینڈ سندر روڈ پر واقع سکول میں ننھے طلباء کا بجلی بلوں میں اضافے پر احتجاج۔ ہاتھوں میں احتجاجی پلے کارڈ اٹھائے طلباء کا کہنا تھا، ماں نے سونے کی بالیاں بیچ کر بجلی کا بل ادا کیا، میرے والد بجلی کا بل دیں یا اسکول فیس۔ ننھے طلباء و طالبات نے حکومت اور چیف جسٹس پاکستان سے بلوں میں اضافے کو فوری روکنے کی اپیل کی ہے۔ مانگا منڈی میں مہنگائی کے ستائے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ مزدوروں کا زائد بلوں کے خلاف سبزی منڈی اور مانگا منڈی میں شدید احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا، اتنی مہنگائی کے دور میں اتنے زائد بل کہاں سے جمع کروائیں؟ اعلیٰ حکام ہم مزدوروں پر رحم کریں اور زائد بل کا نوٹیفکیشن واپس لیں۔ بجلی کے بلوں میں بے جا اضافے پر فتح گڑھ کے رہائشیوں کا بھی احتجاج۔ شہریوں نے کینال روڈ بلاک کر دی، بلوں کو پھاڑ کر آگ بھی لگائی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بجلی پوری نہیں آتی لیکن بل پورا آتا ہے، بجلی کے بل اتاریں یا دال سبزی خریدیں۔ ہم لوگ مر رہے ہیں، ہمارے گھر میں فاقے ہیں لیکن بل اتنا آیا ہے کہ ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ دو کمریاں دے مکان نے جنہاں نوں 25,000 روپیہ بل آ رہا۔ فیصلے سانوں بلاں نے سانوں پاگل کیتا ہے۔ میں رکشا ڈرائیور ہوں، میرا 34,000 روپیہ بل آیا ہے۔ 4 محلے کی جگہ ہے ہماری، تو اس میں آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ 58,000 بل بندہ کس طرح پے کر سکتا ہے۔ ہربنس پورہ کے علاقے میں بھی شہری بھاری بلوں سے پریشان۔ لوگ بجلی کے ناقص ترسیلی نظام اور ہزاروں روپے کے اضافی بلوں کے بوجھ سے افسردہ دکھائی دیے۔ کیمرامین بلال علی کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ عوام مہنگی بجلی سے پریشان، لیسکو کو ریکوری کی پڑ گئی۔ لیسکو نے ریکوری سٹاف کی ہفتہ وار چھٹی بھی منسوخ کر دی۔ بجلی بل ریکوری کے لیے لیسکو کا عملہ آج بھی دفاتر میں موجود ہے۔ ذرائع کے مطابق بل جمع کروانے کی شرح میں 25% تک کمی ہوئی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد۔ جی بالکل، مہنگی بجلی کے ساتھ مختلف جو ہے وہ سب ڈویژن میں اوور بلنگ نے بھی صارفین کو پریشان کر رکھا ہے۔ بجلی بلوں نے صارفین کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ لیسکو اتھارٹی کی توجہ جو ہے وہ صارفین کو ریلیف دینے کی بجائے صرف ریکوری پر مرکوز ہے۔ ریکوری سٹاف کی جو ہے وہ لیسکو انتظامیہ کی جانب سے آج ہفتہ وار چھٹی بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ لیسکو کا ریکوری عملہ آج بھی جو ہے وہ دفاتر میں موجود ہے اور صارفین کے کنیکشن جو ہے وہ منقطع کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ریکوری ٹیموں پر تشدد کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اب آپے سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور جتنے بل انہیں موصول ہوئے ہیں وہ بل جمع کروانے کی قوت جو ہے وہ ان میں ختم ہو چکی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا ریئیکشن بھی جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور مختلف مقامات پر لیسکو کی ٹیموں پر تشدد کیا جا رہا ہے، جبکہ مختلف سب ڈویژن کے باہر جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں۔
बिलों की इकसात पर भी लेस्को अथॉरिटी की जानिब से पाबंदी लगाई गई है। तो सार्फिन का जो थोड़ा बहुत रिलीफ इकसात की सूरत में मिलता था वो भी तकरीबन खत्म कर दिया गया है। यही वजह है कि रवा माह बिल जमा करवाने की शरह में तकरीबन 25% से जायद जो है वो कमी रिकॉर्ड हुई है। ज़राए का ये भी कहना है कि बिल जमा ना होने के बायस लेस्को को हफ्तावार छुट्टी भी मंसूख करना पड़ी है और आज तमाम लेस्को का फील्ड अमला जो है जो रिकवरी पर मामूर है वो इस वक्त रिकवरी कर रहा है और सार्फिन जो है वो बिल अदा नहीं करते उनके कनेक्शन जो है वो मुनक़ता किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब सार्फिन ये परेशान है कि आज जो है वो तमाम बैंक बंद हैं और बैंक बंद होने की वजह से आज जो है वो बिल भी अदा नहीं कर पा रहे और दूसरी जानिब लेस्को अफसरान भी जो है वो फील्ड में मौजूद हैं और सार्फिन को जो है वो जबरदस्ती बिल अदा करने का कहा जा रहा है। लेस्को दफातर के बाहर भी जो है वो अफसाद करवाने वाले सार्फिन का रश है। ज्यादा मसला जो है वो इंडस्ट्रियल सार्फिन को जो है वो पेश आ रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियल सार्फिन की इकसात जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं और मुतअद्दिद सरकारी इदारे भी जो है वो ताहाल उन्होंने भी बिल अदा नहीं किए क्योंकि उनको भी जो है वो इस दफा बहुत ज्यादा बिल आए हैं। तो मुतअद्दिद सरकारी इदारे भी इस वक्त जो है वो लेस्को के नादहिंदा हैं। फील्ड अफसरान आज तमाम फील्ड में मौजूद हैं और इनका टारगेट यही है कि जल्द अज जल्द जो है वो रिकवरी का टारगेट जो है वो पूरा किया जा सके। जी ठीक है फहद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। नाबालिग बच्चों की शादी और निकाह फॉर्म कालम पर पुर न करने का इंकशाफ, 100 से ज़ायद कम उम्री की शादी और निकाह फॉर्म के केसेस पर शिकायत मौसूल, सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब का इजहार बरहमी, नोटिफिकेशन जारी, गलती करने वाले को सीधा जेल भेजा जाएगा। मजीद बात करते हैं इमरान अकबर से। इमरान आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, मामला कुछ इस तरह है कि लाहौर में सुबह भर में नाबालिग बच्चों की शादी और निकाह फॉर्म कालम पुर न करने का इंकशाफ हुआ है। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब को 100 से ज़ायद कम उम्री शादी और निकाह फॉर्म के केसेस पर दरखास्तें मसूल हुई, जिस पर सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने अफसरान पर बहमी का इजहार करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया और गलती करने वाले को सीधा जेल भेजने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। इस वाले से निकाह रजिस्ट्रार और सेक्रेटरी लीव कौंसल निकाह फॉर्म के कालम को न करने के जिम्मेदार करार दे दिए गए हैं। महकमा बल्दियात पंजाब ने चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 पर अमल दरामद में कोताही के मुर्तकिब को जेल भेजने का फैसला कर लिया है। चाइल्ड मैरिज रोकने और 1929 के एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद के लिए महकमा बल्दियात ने मुरासला भी जारी कर दिए है। मुरासले के मुताबिक मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत निकाह नामे के तमाम कालम को करना नामी करार दे दिए गए हैं, जबकि मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद न करने वाले निकाह रजिस्ट्रार का लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक निकाह रजिस्ट्रार पर ऑर्डिनेंस की खिलाफवर्जी पर फौरी आपका बहुत शुक्रिया इमरान। तो खबर यह है, लाहौर पुलिस में 37 उम्मीदवारों को फैमिली क्लेम पर भर्ती कर लिया गया। एसएसपी एडमिन आतिफ नज़ीर ने भर्ती का अमल मुकम्मल किया। 37 उम्मीदवारों की कांस्टेबल के रैंक पर भर्तियां की गईं। भर्ती होने वालों में अली हसनैन, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद सोहराब शामिल हैं। मुदस्सिर हुसैन से मजीद जानते हैं। मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस में 37 उम्मीदवारों को फैमिली क्लेम किया है। एसएसपी एडमिन आतिफ नज़ीर ने भर्ती का जो अमल है वो मुकम्मल किया है। 37 उम्मीदवारों की कांस्टेबल के रैंक पर भर्ती की गई है। भर्ती होने वालों में अली हसनैन, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद सोहराब अली, इसके अलावा मोहम्मद अली, मनवर, सानुल्लाह, अबू बकर, सनाद, अहमद रजा, अली अरहम, अहमद हसन, मोहम्मद नबीद समेत जो दीगर हैं वो शामिल है। भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के वालिद जो हैं वो दौरान सर्विस शहीद या इंतकाल कर चुके थे, जिसके लाहौर के अहकामात पर एसएसपी एडमिन ने जो है वो भर्ती मुकम्मल की है। भर्ती के बाद अब जो है इनका स्क्रूटनी जो है वो की जाएगी, इनकी वेरिफिकेशन जो है वो करवाई जाएगी स्पेशल ब्रांच से, और स्पेशल ब्रांच से वेरिफिकेशन के बाद इनको जो है बाकायदा तौर पर पुलिस लाइन कोलैबोरेशन में रिपोर्ट करवाया जाएगा और वहाँ से इनको ट्रेनिंग पर भिजवाया जाएगा। ठीक है मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। एलडीए की टीपा को खुद मुख्तार बनाने के लिए इदारे की असर तश्कील। शहर में ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए टीपा को नई जिम्मेदारियां तफवीज़। एलडीए गवर्निंग बॉडी ने टीपा की असर तश्कील की मंजूरी दे दी। टीपा को कसीर रकम देने के बाद पैच वर्क लगाने की हिदायत। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। की ज़ैली एजेंसी टीपा को खुद मुख्तार बनाने के लिए अदारे की असर नो तश्कील दे दी गई है और शहर लाहौर में ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए टीपा को नई जिम्मेदारियां भी तफवीज़ कर दी गई हैं। और
یہ اثر نو تشکیل کرنے کی باقاعدہ LDA گورننگ باڈی سے منظوری بھی دے دی گئی ہے، جس میں ٹیپا کو کثیر رقم دینے کے بعد شہر کی سڑکوں پر پیچ ورک لگانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیپا میں نیا مینٹیننس اینڈ ریپیئرنگ جو ونگ ہے اس کی بھی تشکیل کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ M&R سیکشن چیف انجینئر ٹیپا کے زیر انتظام کام کرے گا۔ سڑکوں کی مرمت اور شگاف کی مرمت کا کام بھی نئے ڈائریکٹوریٹ کو تفویض کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ 12 سالوں سے LDA کے بند اسفالٹ پلانٹ کو بھی چالو کر دیا گیا ہے اور اب اس اسفالٹ پلانٹ کو دیکھ بھال اور چلانے کی ذمہ داری بھی ٹیپا کو تفویض کی گئی ہے۔ اسفالٹ پلانٹ کی مرمت سے LDA اور ٹیپا کو کنٹریکٹر سے اسفالٹ لینے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ ٹیپا کی اثر نو تشکیل میں پہلے سے نصب شدہ کرب سٹون کی مرمت، تبدیلی اور پینٹنگ کی ذمہ داری بھی تفویض کی گئی ہے، جبکہ آپ کا ایمرجنسی بہت شکریہ زین۔ ایشیا کپ کے انتظامات کو بہتر بنانے کے لیے انتظامیہ متحرک DC لاہور نے افسران کو 28 اگست تک انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے ذمہ داریاں تفویض کر دیں۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ عمر مقبول فوکل پرسن تعینات، ٹرانسپورٹ، ٹریفک اور پولیس کے ساتھ مکمل ربط کی ذمہ داری ADC عدنان رشید کے سپرد کر دی گئی۔ عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں۔ عمران، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، شہر لاہور میں ایک بار پھر کرکٹ میلہ لگنے کو تیار ہے اور اس حوالے سے سونپی گئی ہے اور اس حوالے سے 28 اگست تک انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے باقاعدہ طور پر احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور میٹنگ منٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ عمر مقبول کو تینوں میچز کے فوکس پرسن تعینات کر دیا گیا، جیسے ٹرانسپورٹ، میٹرو بس، ٹریفک اور پولیس کے ساتھ مکمل ربط کی ذمہ داری جو ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عدنان رشید کے سپرد کر دی گئی ہے۔ عارضی ہسپتال اور موبائل یونٹ کے انتظامات مکمل کرنے کی ذمہ داری کے ذمہ ہے، جبکہ قذافی اسٹیڈیم کے اندر صفائی کی ذمہ داری ڈائریکٹر SFDM سرفراز حسین کے سپرد کر دی گئی ہے۔ قذافی اسٹیڈیم کے مین انکلوئر کے انتظامات کی ذمہ داری اسسٹنٹ کمشنر مارٹون صاحبزادہ یوسف کے سپرد کی گئی ہے۔ اسی طرح پارکنگ اور شٹل بس سروس کی ذمہ داری سب رجسٹرار عثمان اکرم کے سپرد کر دی گئی ہے۔ PC ہوٹل سے قذافی اسٹیڈیم روٹس اور لائٹس کی ذمہ داری اسسٹنٹ کمشنر سٹی واسق عباس کے سپرد کی گئی ہے۔ اسی طرح مین عمران اکبر، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں، پرویز الہی کو خفیہ مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کے خلاف دائر اپیل کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی اپیل مسترد کر دی۔ فیصلے کے مطابق سنگل بینچ کے فیصلے میں مداخلت کی ضرورت نہیں۔ سنگل بینچ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے طے شدہ اصولوں کے مطابق ہے۔ جسٹس محمد وحید خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 9 صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، پرویز الہی کو خفیہ مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کے خلاف دائر اپیل کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی اپیل مسترد کر دی۔ فیصلے کے مطابق سنگل بینچ کے فیصلے میں مداخلت کی ضرورت نہیں۔ سنگل بینچ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے طے شدہ اصولوں کے مطابق ہے۔ آج ہی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا 1787 کمپلینٹ سینٹر کا دورہ۔ آج ہی پنجاب نے زیر التوا شکایت بارے دریافت کیا۔ ڈاکٹر عثمان انور نے بذریعہ کال شہریوں کی شکایات سنی اور حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں مجاہد لطیف سے۔ جی مجاہد، آگاہ کیجیے گا اس دورے کے بارے میں۔ آج بالکل سینٹرل پولیس آفس آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا 1787 کمپلینٹ سینٹر کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے زیر التوا شکایت بارے دریافت کیا، شکایت ازالے کا عمل چیک کیا۔ آئی جی پنجاب نے بذریعہ کال شہریوں کی شکایت سنی اور موقع پر احکامات بھی دیے۔ حافظ آباد سے موصول درخواست پر DPO حافظ آباد کو ذاتی نگرانی میں فوری ازالے کا حکم دیا۔ تمام سپروائزری افسران 1787 سے بھجوائی گئی شکایت پر فوری ایکشن لے کے شہریوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کریں، ایسا کہنا تھا جی پنجاب کا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اندراج مقدمہ میں تاخیر کی شکایت پر ذمہ داروں کے خلاف محکمانہ کارروائی میں تاخیر نہ کی جائے۔ بذریعہ کال، SMS، ای میل سے دیگر ذرائع سے موصول شکایت کو مقررہ ٹائم لائن اور SOPs کے مطابق فوری حل کیا جائے۔ شہری پولیس فورس کی جانب سے ہونے والی کسی بھی قسم کی بے ضابطگی کی درخواست 1787 پر درج کروا سکتے ہیں۔ شفاف اور غیر جانبدار احتساب پولیس فورس کی کارکردگی میں بہتری کا باعث بنے گا۔ AIG کمپلینٹس احمد محی الدین نے آئی جی پنجاب کو 1787 ڈیش بورڈ اور مختلف رینج کے موصول ہونے والی شکایت کے بارے میں کیا۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आफ्टरनून स्कूल्स के असातिज़ा को तनख्वाहों की अदायगी का मामला। पंजाब भर में 10,000 असातिज़ा कई माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। फंड्स रिलीज़ करने के लिए महकमा एजुकेशन का तमाम अजला के CEOs को हुक्म जारी कर दिया गया है। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं। जी आतिफ। हाँ जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से फंड तो जारी कर दिए गए थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने तनख्वाहें जो है वो स्कूलों के साथ को नहीं दी थी, और ये 1 साल की तनख्वाहें आफ्टरनून स्कूलों के साथ की जो है इल्तवा का शिकार थी, उनको नहीं मिली थी। अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ जिनकी 36 तादाद है, इनको कहा है कि फौरी तौर पर जो स्कूलों के अकाउंट्स है उसमें तनख्वाहें जो मुंतकिल की जाए ताकि असातिज़ा के वाजिबात अदा हो सके। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सरकारी कॉलेजेस में तबादलों में मुबैना घपले। महकमा हायर एजुकेशन ने 3 सेक्शन ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी केसेस एंटी करप्शन को भिजवा दिए। SO मुदस्सर हुसैन, खुर्रम वड़ैच और फायजा अनवार के खिलाफ केसेस एंटी करप्शन को भिजवाए गए हैं। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं। आतिफ आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत सारी शिकायत मसूल हुई थी कि जो असातिज़ा के तबादले हो रहे हैं इसमें करप्शन और घपले हैं, तो इस पर अब 3 जो सेक्शन ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ जो केसेस है वो एंटी करप्शन को भिजवाने का फैसला किया गया है। सेक्शन ऑफिसर मुदस्सर हुसैन, खुर्रम वड़ैच और फायजा अनवर के खिलाफ केसेस जो एंटी करप्शन को भिजवा दिए हैं। ये 55 के खिलाफ जो करीब तबादले हुए थे, इन हवाले से शिकायत थी, और ये कहा गया है महकमा स्कूल हायर एजुकेशन के मरासले में कि इन तबादलों के हवाले से कोई इजाज़त नहीं दी गई थी, तो बगैर इजाज़त ये तबादले किए गए थे, और इन तबादलों के हवाले से करप्शन और घपलों के इल्जाम थे। तो अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये केसेस एंटी करप्शन को भिजवा दिए और कहा है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है इन केसेस में शुरू की जाए और रिपोर्ट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी शेयर की जाए। ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। DC राफा हैदर का फिल्टर क्लिनिक बिलालगंज और डिस्ट्रिक्ट जनरल TB सेंटर का दौरा। DC लाहौर ने इंदौर सर्विस डेंगी काउंटर समेत मुख्तलिफ वार्ड्स को चेक किया। DC लाहौर ने मरीजों की इयादत की, लवाहिकीन को दरपेश मसाइल सुने। हस्पतालों में नाकिस इंतजामी अमूर पर DC लाहौर की MS को वार्निंग। मजीद बात करते हैं इमरान अकबर से। इमरान आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब की विजन के मुताबिक अस्पतालों में इंतजामी बेहतरी के लिए कोशिशें जारी हैं। ज़िला इंतजामिया की तरफ से जो है आज दौरे किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने फिल्टर क्लिनिक बिलालगंज और डिस्ट्रिक्ट जनरल TB अस्पताल का दौरा किया है, जहाँ पर इंडोर सर्विलेंस और डेंगी काउंटर समेत मुख्तलिफ वार्ड को चेक किए गए हैं। मरीजों की इयादत की गई है, मरीजों और लवाहिकीन को दरपेश मसाइल सुने गए हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि वार्ड में सफाई की अफसर सूरत पर मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दी है, जिसमें अस्पताल में नाकिस इंतजामी अमूर पर MS को वार्निंग जारी की गई है, जबकि बेहतरी न लाने पर तदीबी कार्रवाइयों का अंदिया भी दिया गया है। अस्पताल का इंतजाम पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के हवाले है, जबकि बेहतरीन के लिए डेडलाइन दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मरीजों को नामुकम्मल सहूलियत फराहम करने पर अमले पर इज़हार बरहमी किया और वार्निंग भी जारी की। इस वाले से अस्पताल में बड़ी खराबशिया और कबार को भी फौरी नीलाम करने का हुक्म दिया। ACCT को कानूनी तकाजे पूरे करके MCL की मदद से मटेरियल फौरी ठिकाने लगाने का हुक्म दे दिया गया है। LWMC को अस्पताल के अंदर और इतराफ में जीरो वेस्ट करने का हुक्म दिया गया है, जबकि PHA अमला अस्पताल के अकब में दरख्तों और सब्ज हिस्सों को साफ करे। DC लाहौर का कहना है कि ACCT टीम अस्पताल की मेन सड़क पर तजावज़ात को फौरी तौर पर खत्म करवाए। मरीजों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी 24 घंटों में बेहतरी लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक सेहत की आपका बहुत शुक्रिया इमरान। इंतखाबी हलकों में तरक्याती कामों पर दूसरी बार कदगन। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इंतखाबी हलकों में होने वाले काम पर एतराज़ उठा दिया। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इंतखाबी हलकों में काम करवाने से मुतालिक केस कमेटी को दोबारा भेज दिया। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन आगाह कीजिए। ज़ैन से राबता मुनक़ता हुआ है। इंतखाबी हलकों में होने वाले काम पर एतराज़ उठा दिया गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग और सेक्रेटरी ख़जाना पर मुश्तमिल कमेटी को ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़। कमेटी तरक्याती काम से मुतालिक अपनी जामे रिपोर्ट पेश करेगी। ज़ैन से राबता बहाल हुआ है, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी ज़ैन बताइएगा। ये पंजाब हुकूमत की जानिब से मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली के हलकों में तरक्याती का प्लान तो बनाया गया था, लेकिन अब LDA के इस प्लान को दूसरी मरतबा सुबकी का सामना करना पड़ा है कि LDA की तजावीज़ पर दोबारा LDA गवर्निंग बॉडी ने एतराज़ात उठा दिए हैं। इस तरह इन कौमी व सूबाई असम्बली के हलकों में जो सीवरेज वाटर सप्लाई और PCC के काम किए जाने थे, इनके ऊपर
दूसरी मरतबा कदगन लग चुका है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इंतखाबी हलकों में होने वाले कामों पर एतराज उठा दिया है और निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इन हलकों में काम करवाने से मुतालिक जो केस है वो कमेटी को दोबारा भेजने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जिसमें सेक्रेटरी हाउसिंग और सेक्रेटरी खजाना पर मुश्तमिल कमेटी को इन केसेस को रिव्यू करने की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है और ये कमेटी तरक्याती कामों से मुतालिक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके अलावा इस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि तरक्याती काम करवाने से कबल इलेक्शन कमीशन से इजाजत ली जाए। कि डिविजनल वर्किंग पार्टी ने 7 अरब रुपए के मंसूबों की मंजूरी दी थी, जिसके तहत लाहौर के तमाम कौमी व सूबाई असम्बली के हलकों में पीसीसी, सीवरेज और वाटर सप्लाई के काम किए जाने थे। लेकिन अब वज़ीर आला पंजाब के एतराज के बाद इन हलकों में तरक्याती कामों पर कदगन लग चुका है और अब ये कमेटी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो फैसला करेगी कि आया कब इन हलकों में तरक्याती कामों का आगाज किया जाए। जी, आपका बहुत शुक्रिया। बिजली के इजाफी बिलों पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनारुल हक काकड़ का नोटिस मामले पर कल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। ट्विटर पैगाम में कहा कि इजलास में वज़ारत बिजली और तकसीमकार कंपनियों से ब्रीफिंग ली जाएगी। सार्फिन को बिजली के बिलों के हवाले से ज़्यादा रिलीफ देने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। मोहम्मद यासीन से मज़ीद जानते हैं। जी यासीन, आगाह कीजिएगा इस ट्वीट के बारे में। बिजली के बिलों में भारी इजाफों के खिलाफ शहर और मुल्क के अक्सर जो शहर इलाकों में जो एहतजाज का सिलसिला है इन दिनों जारी है और इसी वजह से निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनारुल हक काकड़ ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने बिजली के भारी बिलों पर कल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में वजारत बिजली और तकसीमकार कंपनियों से ब्रीफिंग ली जाएगी और सार्फिन को बिजली के बिलों के हवाले से ज़्यादा रिलीफ देने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास शहर भर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ किए गए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर लाहौर की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की हिदायत की गई है। तो आपको बताएं, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और शहर भर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इक़दाम का जायज़ा लिया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा इस इजलास के बारे में। अभी बिल्कुल MCL और LDA की शहर में गैर कानूनी इमारत के हवाले से आज की ज़ेर सदारत गैर कानूनी इमारत और कंस्ट्रक्शन को ना रोकने वाले अफसर लाहौर में काम नहीं कर सकते। अफसरान ने पहले तौर पर पूरे शहर की गैर कानूनी इमारत और तमीर के हवाले से डाटा इंटीग्रेशन हर सूरत नाफिज होगी। दूसरे मोहल्ले में डाटा इंटीग्रेशन शहरी ओपन होगी, जबकि शहरी गैर कानूनी इमारत और तमीर की तस्वीर दे सकेंगे। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA और MCL की कारकर्दगी के बारे भी इजलास हुआ। MCL और LDA के टाउन प्लानिंग तमाम अफसरान से गैर कानूनी इमारत पर एक्शन व नक्शा मंजूरी का इस्तेमाल किया। इजलास में शहर भर में गैर कानूनी इमारत और कमर्शलाइजेशन के दिया गया। शहर में गैर कानूनी इमारत और कमर्शलाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कमिश्नर ने हर अफसर की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए ठीक है इमरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। महंगाई खत्म होने के बजाय रोज बाय रोज बढ़ने लगी। अशियाए खुरोनोश के दाम हो गए बेलगाम। सब्जियां, ब्रायलर, अंडे, आटा सब कुछ महंगा हो गया। शहरियों के लिए खरीदारी करना मुश्किल हो गया। महंगाई का जोर बढ़ने लगा, आवाम को मुश्किलात का सामना। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए। महंगाई में रेट लिस्ट भी नजरअंदाज। कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। टमाटर 8 रुपए महंगे होकर 80 रुपए किलो मुकर्रर। दरचावल टमाटर 130 रुपए किलो फरोख्त। बैंगन की कीमत में 5 रुपए का इजाफा, 100 के बजाय 140 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। करेले 10 रुपए महंगे होकर 120 रुपए किलो हो गए। मार्केट में 160 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। भिंडी, अरवी 10 रुपए, फूल गोभी, शलजम, घिया तोरी 5 रुपए फी किलो महंगी हुई। पोल्ट्री मसनूआत भी गरीब के लिए ख्वाब बनने लगी। मुर्गी का गोश्त 12 रुपए महंगा हुआ, कीमत 579 रुपए फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपए इजाफे से 299 रुपए फी दर्जन की सतह पर पहुंच गए। महंगाई से शहरियों की चीखें निकल गईं। कहते हैं घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो गया। सब्जी वगैरह हर चीज महंगी हो चुकी है। चीनी भी हमारे फोल्ड से बाहर है। ठीक है, आटा वगैरह उन्होंने इतना महंगा कर दिया, किसी गरीब ने क्या खाना। अब गोश्त देख ले, सस्ता होता है फिर उसको महंगा कर देते हैं।
मैं 1 घंटा होगा हूँ पूरे बाज़ार में फिर रहा हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। जो सब्ज़ी सस्ती है जो ले रहे हैं, जिस सब्ज़ी को हाथ लगाऊँ वो भी महंगी महंगी दे रहे हैं, सबसे महंगी दे रहे हैं, कोई हाथ नहीं लग रहा। चलो गरीब आदमी दाल ही खा ले, दाल की तरफ हो जाता हूँ, वो दालें भी इतनी महंगी हद से ज़्यादा। मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपए का हो गया, जबकि चीनी 165 रुपए फी किलो तक बिकने लगी। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। कारोबारी हफ्ते में रुपए को संभाला ना मिला। करेंसी मार्केट में डॉलर रेट बेलगाम रहा। डॉलर का सरकारी रेट रमा हफ्ते 300 रुपए की हद अबूर कर गया। स्टेट बैंक ज़र मुबादला ज़खायर संभाले रखने की पॉलिसी पर अमल पैरा। ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपए महंगा। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। कारोबारी हफ्ता रुपए की बेकदरी के नए रिकॉर्ड बनाता रहा। हफ्ता भर में डॉलर की धुआंधार इनिंग्स जारी रही। एक हफ्ते में इंटर बैंक में डॉलर 5 रुपए 22 पैसे महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 12 रुपए का इजाफा हुआ। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा डॉलर के सरकारी रेट ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल की। 24 अगस्त को इंटर बैंक डॉलर रेट 300 रुपए तक पहुँच गया और 25 अगस्त को डॉलर 301 रुपए की हद पर बंद हुआ। दूसरी जानिब डॉलर खरीदारी का तमाम दबाव ओपन मार्केट में रहा, जिससे ओपन मार्केट में डॉलर 317 रुपए तक चला गया। मार्केट जराये के मुताबिक दरामद कुनिंदगान अपने ऑर्डर्स के लिए डॉलर खरीदारी की कोशिश में हैं, जबकि स्टेट बैंक अपने ज़र मुबादला ज़खायर कम अज कम 8 अरब डॉलर तक रखने की पॉलिसी पर गामजन है और खरीदारी बढ़ने से ओपन मार्केट में तेजी रही। ओपन मार्केट और सरकारी रेट में फर्क बढ़ने से तरसीलात ज़र में मजीद कमी का खदशा भी मौजूद है। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला का शहरियों की सहूलत के लिए आसान इकदाम। LDA में दरखास्तें जमा करने वाले शहरियों को उनकी दहलीज पर दस्तावेज़ात या NOCs मिलेंगे। जिला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास। वज़ीर आला की हिदायत पर LDA घरों में दस्तावेज़ात की डिलीवरी सर्विस दस्तक शुरू करेगा। LDA में दरख्वास्तें जमा करवाने वाले शहरियों को इनकी दहलीज पर दस्तावेज़ात या NOCs मिलेंगे। इजलास में दीगर शहरों में भी दस्तावेज़ात की डिलीवरी सर्विस शुरू करने का जायजा लिया गया। टीपा में M&R डायरेक्टोरेट कायम करने की मंजूरी। LDA की प्रॉपर्टी पर बिल बोर्ड्स नस्ब करने की मंजूरी भी दे दी गई। इजलास में सीवेज ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस के असर नो तयन के लिए कमेटी की रिपोर्ट का जायजा। बड़ी प्राइवेट आबादियों में सीवरेज और ड्रेनेज चार्जेस का असर नो जायजा लेने के लिए कायम कमेटी की रिपोर्ट पेश। अकबर चौक फ्लाईओवर्स के साथ कॉलेज रोड भी बनेगी। तरमीम शुदा PC1 की मंजूरी। इजलास में नए तामीर शुदा कॉम्प्लेक्स के इंतजामी अमूर का भी जायजा लिया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, LDA गवर्निंग बॉडी के अरकान, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड और मुतलका हुकाम ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़।